محترم ناظرین، آداب۔ روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے، اور اگر کوئی شخص روزے دار سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، 2 بار کہہ دے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے کہ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، یعنی نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ آغاز کرنے سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ سابق سی ایم KCR کو ارکان خاندان سے جان کا خطرہ ہے، اسی لیے وہ پولیس بندوبست کے درمیان رہتے ہوئے اپنی فیملی سے دور رہ رہے ہیں۔ گورنر کے خطبے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے قرارداد پر مشاورت کرنے کے موقع پر سی ایم ریونت ریڈی نے سخت لہجے میں کیا تبصرہ۔ بالکنڈہ حلقے میں 51,000 کسانوں کو قرض معاف کیے جانے کی منجا ملا، صرف 20,000 کسانوں کا قرض معاف کیا گیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں سابقہ وزیر بالکنڈہ MLA ویملا پرشانت ریڈی نے کیا اظہار۔ ہلدی کسانوں کو سہارا دے، کم از کم 15,000 روپے مناسب قیمت فراہم کرے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں پلے کارڈ کے ساتھ MLC کے کویتا نے کیا احتجاج۔ بروز اتوار جمیعت العلماء آرمور کرکٹ کی جانب سے عظیم الشان جلسہ عام جنگ بدر و اصلاح معاشرہ کا انعقاد، عوام سے شرکت کی اپیل۔ مجلس نظام آباد کی پولیس کمشنر سے ملاقات، امن کی فضا کی برقراری، ٹریفک مسائل کے حل کے لیے تبادلہ خیال۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف نظام آباد مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے 17 مارچ صبح 11 بجے تا 1 بجے تک شہر کے دھرنا چوک پر پیسفل احتجاج، کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ دلی کے اندر جو اوقاف کی جائیدادوں کے تعلق سے بل پارلیمنٹ میں پیش ہونے والا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پہلے تو انہوں نے 13 تاریخ مقرر کی تھی، پھر ہمارے ملک کے بھائیوں کا خیال کر کے کہ وہ ہولی کے اندر مصروف رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، یہ کہہ کر کے 13 کے بجائے پھر 17 تاریخ کر دی گئی ہے، اور انہوں نے پیر کے دن 4 گھنٹے کا احتجاجی پروگرام جنتر منتر پہ رکھنا طے کیا ہے، اور قریب کے جتنے اسٹیٹس ہیں وہاں کے مسلمان حضرات کو بھی انہوں نے بلا دیا۔ ہم چونکہ بہت دور رہتے ہیں، ان کی حمایت میں ہمارا بھی وہ احساس ہے جو کرنا چاہتے ہیں، تو نظام آباد کی مسلم پرسنل لاء کمیٹی نے یہ طے کیا کہ اسی تاریخ کو، جس تاریخ کو دلی کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، یہاں بھی احتجاج کیا جائے۔ ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے، اس کی مخالفت پورے ہندوستان کا ہر دانشور، ہر ذمہ دار ذہن کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ دلی کی جانب سے جو جنتر منتر پر پیر کو احتجاجی دھرنا ہے، اسی کی تائید اور حمایت میں نظام آباد میں ہولی کے بہانے پرامن ماحول کو بگاڑنے شرپسند عناصر کی کوشش، مسلم آٹو ڈرائیور تشدد کا نشانہ، ٹاؤن مجلس قائدین کی آٹو ڈرائیور کے ہمراہ پولیس میں شکایت، شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی مانگ پر 5 افراد کے خلاف کیس درج۔
शहर में होली के बहाने चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से शरपसंदी करते हुए नाकाराम इलाके के रहने वाले अजीज नामी मुस्लिम नौजवान ऑटो ड्राइवर को अपने तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर पर जबरदस्ती रंग डालकर एतराज करने पर इसके ऑटो को नुकसान पहुंचाया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर टाउन मजलिस कायदीन ने मुतल्लका पुलिस स्टेशन 5th टाउन पहुंचकर तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। मजलिस कायदीन की बरवक्त मदाखिलत और तहरीरी नुमाइंदगी पर मुतल्लका पुलिस ने शहर के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरपसंदों को गिरफ्तार करते हुए इन पर मुख्तलिफ दिफात आयद करते हुए 5 अफराद बी अशोक, बी विशाल, बी नारायणा, बी मनीष और बी राहुल के खिलाफ क्राइम नंबर के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मौके पर जिला सदर मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद, सीनियर कायद मजलिस नागाराम अजीम बाबा और शाहनवाज व दीगर मौजूद थे। मजलिस की बरवक्त मदाखिलत पर ऑटो ड्राइवर शेख अजीज ने टाउन मजलिस कायदीन का शुक्रिया अदा किया है। मैं अजीज बात करूँ, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। मैं नागाराम में रहता हूँ, निज़ामाबाद में। 11 चौराहे से नागाराम के पैसेंजर भर लेके आ रहा था। आते आते पीछे से टिप्पू सुल्तान की फ़ोटो देखे, मेरे को कलर फेंक के मारे अंग पे। तो मैं बोला रुका के बोला भैया नको मारो, हमको नहीं जमता बोले। तो फिर क्या कर लेता वो, ये बोल के धमकी दिए। धमकी दे के मैं सीधा आ गया वहाँ से खामोश। आने के बाद यहाँ नागाराम में यहाँ बेकरी है रोड पे, वो रोड करने रुका के मेरे पैसेंजर के आंख पे कलर डाले, मेरे आंख पे कलर डाले, मेरा ऑटो फोड़ दिए, पीछे से फ़ोटो फाड़ दिए, टिप्पू सुल्तान की लात मार के फ़ोटो फाड़ दिए। मैं 5 टाउन में आया, मैं एम वालों को बुलाया, उनको बुलाए तो ना आए और पुलिस वालों से केस करने लगाए। अशोक और 4 जनों इन लोगों पे केस हुआ। केस होने के बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस वालों का भी और MIM पार्टी वालों का भी, मेरा सपोर्ट करे और इससे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मजलिस निज़ामाबाद की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, अमन की फ़िज़ा की बरकरारी, ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तबादले ख़याल। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद साई चैतन्या से आज इनके चैम्बर में मुलाकात की और निज़ामाबाद जिले में तकर्रुरी पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोतमिद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोतमद एजाज हुसैन, साबिका कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली बागबान, अब्दुल शरीम मोहम्मद मुस्तहसीन, सैयद रफीउद्दीन के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अमर फारूक पर मुश्तमिल वफद ने पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद के तौर पर साई चैतन्या के जायजा लेने बाद पहली मरतबा मुलाकात की। मजलिस निज़ामाबाद की जानिब से तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए माह सयाम में अमन व ज़ब्त की बरकरारी, गुंजान अक़लियती आबादी वाले इलाकों में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दामात रूबे अमल में लाने और रातों में हस्बे मामूल दुकानों को खुला रखने की इजाज़त देने की ज़रूरत पर जोर दिया। पुलिस कमिश्नर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए माह सयाम में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल बनाए रखने के इक़दामात का तयक़ुन दिया और ईद उल फितर तक अहमदी बाजार तक बरकतपुरा चौरस्ता इलाकों में ऑटो रिक्शाओं की आमद व रफ्त पर रोक लगाने, ट्रैफिक की बहाली के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को पुलिस से ताउन की ख्वाहिश की। जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम निज़ामाबाद CP साहब से मुलाकात हुई। पहली बार मुलाकात हुई और तमामी हालात का खुसूसन रमज़ान के ताल्लुक़ से निज़ामाबाद में जिस अंदाज में रमज़ान गुजरता उस ताल्लुक़ से बातचीत हुई। बहुत अच्छी बात हुई। CP साहब भी रिस्पांस अच्छा दिए और साथ ही साथ क्योंकि वो उर्दू से करीब है इसलिए बात करने में और समझने में आसानी महसूस हुई। क्योंकि अब आने वाले कुछ 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन में पिछले आने वाले रमज़ान के बाबत मार्केट का हालात पूछे तो हम पूरा बताएं। खुसूसन नेहरू पार्क के सराउंडिंग में जहाँ पर दुकानें लगती हैं और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अहमदी बाजार नेहरू पार्क से किला रोड तक पूरे ट्रैफिक को जो डाइवर्ट करने के लिए 8वां अंदर नहीं आने के लिए तमामी चीज़ों का हम लोगों ने बताया कि पिछले रमज़ानों में ऐसा होता है तो यकीनन वो सही करेंगे बोल के हमें यकीन दिलाया। 26 मार्च से कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेन अब सिकंदराबाद के बजाय सेरलापल्ली से चलाई जाएगी। अनकरीब इसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में तब्दील करने का फैसला।
साउथ सेंट्रल रेलवे विशाखापट्टनम जोन के तिरुपति डिवीजन के तहत तिरुपति ता आदिलाबाद, ब्रागोडूर, नेल्लोर, ओंगुल, तनाल, विजयवाड़ा, खम्मम, काजीपेट, सिकंदराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद और मुदखेड़ के दरमियान रोजाना चलाई जाने वाली कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेन की मुतल्लिका हक्काम की जानिब से 26 मार्च से सिकंदराबाद के बजाय चेरलापल्ली बाईपास रेलवे ट्रैक से बुल्लाराम चलाई जाएगी। अलबत्ता इसके रोजाना के औकात कार में कोई तब्दीली नहीं की गई है। वाज़ेह रहे कि तिरुपति ता आदिलाबाद का रेलवे ट्रैक का फासला जुमला 1148 किलोमीटर यानी 713 मील पर मुश्तमिल है। इस जुमला फासले को ये ट्रेन जुमला 24 घंटे 50 मिनट में जुमला 60 मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर तौक़ीफ करते हुए 3 मुख्तलिफ रियासतों आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र का अहाता करती है। यहाँ इस अमर का तस्करा जरूरी होगा कि इस ट्रेन का 2 अक्टूबर 1974 को इफ्तिताह अमल में लाया गया, जो शुरुआत में तिरुपति ता सिकंदराबाद के दरमियान चलाई गई। बाद में इसके फासले में तोसी करते हुए इसे निजामाबाद तक फिर आदिलाबाद बरा मुदखेड़ तक चलाई जा रही है। इस ट्रेन के आगाज के आज 50 साल मुकम्मिल होने पर मुतल्लिका हक्काम ने इस मौजूदा एक्सप्रेस ट्रेन को सुपरफास्ट ट्रेन में तब्दील करने का अनकरीब फैसला किए जाने का यहाँ इंकशाफ हुआ है। महाराष्ट्र में वाक़ जलागांव के 40 गाँव में विनोद परदेसी खैत व कुदरती बहरान का सामना करके रिवायती ज़राअत करते हुए किसानों के लिए एक मिसाल कायम की। महाराष्ट्र में वाक़ जलागांव जिले के 40 गाँव में विनोद परदेसी खैत व कुदरती बहरान का सामना करते हुए रियासती ज़राअत करते हुए किसानों के लिए एक मिसाल कायम की है। विनोद परदेसी 2003 में अपने ज़ाती खेत में 3200 मौसम्बी के दरख्त उगाए। वो खैत कुदरती आफात का सामना करते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए अपने मंसूबे के मुताबिक ज़राअत करने के अलावा नर्सरी को कायम किया और रिवायती ज़राअत के साथ मराकज़ से मुल्लाहिक़ा ज़राअत में भी दिलचस्पी लेते हुए कबूल किया। वो दीगर फसलों की काश्तकारी करते हुए आंध्र प्रदेश को बरामद करने का इजहार किया। मी विनोद बालचंद परदेसी, हातले तालुका चाळीसगाव, गणेश नर्सरी, मोबाईल नंबर 9860 800 571। आपल्याकडे काटल गोल्ड नावाची चांगली व्हरायटी आहे आणि आपल्या घरचेच मातृक्ष आहेत काटल गोल्डचे, ज्याला आपल्याला 2दा महाराष्ट्रात उच्चांक भाव मिळालेला आहे। एकदा 69,000 रुपये टन आणि एकदा 91,000 रुपये। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ भविता मराकज़ पर माजूर ख़वातीन की तहनीत अमल में लाई गई। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ भविता मराकज़ पर रियासत तेलंगाना माजूर आइकिया वेदिका मंडल कमेटी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मासूर बच्चों के माओं के अलावा माजूर ख़वातीन को आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर जिला कमेटी सदर श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि माशरे में माजूरीन को हकीर नज़र से ना देखे, बल्कि इन माजूर अफराद पर रहम, शफकत व हमदर्दी करते हुए इन्हें सहारा देते हुए कामयाबी हासिल की जा सकती है। इन्होंने कहा कि माशरे में हम अपने मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करने की ताकीद की। इन्होंने तमाम माजूरीन को मुत्तहिद होकर इनसे मुतल्लिका मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी राजा श्री खजांची मंजूला माजूरीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా వికలాంగులను చిన్న చూపు చూడొద్దని, రెండవది వచ్చేసి వికలాంగుల పైన దయా జాలి అనేది కాదు, దివ్యాంగుల పైన దయా జాలి కరుణ అనేది చూపించకండి। వారికి एडपल्ली मंडल के साटापुर गेट के पास बीआरएस कायदीन ने रियासती असम्बली में जगदीश रेड्डी की मौतली के खिलाफ एहतजाज करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी का अलामती पुतले को किया नजर आतिश। एडपल्ली मंडल के मराकज पर वाक़ साटापुर गेट के पास बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने रियासती असम्बली में साबिका वजीर एमएलए जगदीश रेड्डी की मौतली के खिलाफ पुरजोर एहतजाज करते हुए रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असम्बली में साबिका वजीर जगदीश रेड्डी की जानिब से इजहार ख्याल करने का मौका फराहम करने की ख्वाहिश की, तब स्पीकर की तरफ से इनकार करते हुए ऐवान से मुअत्तल करना मुनासिब नहीं होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन श्रीराम, श्रीनिवास, लायक, इब्राहिम, गंगाधर, विस्तारी, अजय गौड़ व दीगर ने शिरकत की। గ్యారెంటీ లేవున్నాయి, అవి అమలు చేయురని నిలదీసినందుకు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారిని సభ నుండి సస్పెండ్ చేయడం, ఏకపక్ష నిర్ణయం ఏదైతే ఉన్నదో అది సరైనది కాదు, కనీసం తీర్మానం పెట్టి అసెంబ్లీలో చర్చించిన తర్వాత ఒక సభ్యుడిని సస్పెండ్ చేయాల్సిన ఇంగిత జ్ఞానం కూడా ఈ సీఎంకి లేదు అని
निजाम आबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर होने वाले फंड से रामपुर देहात में सीसी रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाए जाने के बायस मुकामी अवाम ने किया इजहार तशक्कुर। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंजूर होने वाले फंड से रामपुर देहात में सीसी रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाने की वजह से मुकामी अवाम ने दिल की गहराइयों से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुतल्लिका मौज़ूआत में तरक्याती कामों के लिए दरकार फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेजी के साथ शुरू करते हुए पाए तकमील पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुतल्लिका मौज़ूआत के अवाम कांग्रेस हुकूमत के तई मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एल दत्तात्री, शेखर नरसागौड़, एम संदीप, कारोबार बुच्चन्ना के अलावा दीगर ने शिरकत की। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद फिर दोबारा आप तमाम का इस्तकबाल है। बरोज़ इतवार जमीयतुल उलमा आरमूर पिरकिट की जानिब से अज़ीमुल शान जलसा-ए-आम जंग बदर व इस्लाम माशरे का इनेकाद अवाम से शिरकत की अपील। जमी मुसलमानान आरमूर पिरकिट व मामिड़ी पल्ली को इत्तला दी जाती है कि जमीयतुल उलमा आरमूर के ज़ेर एहतमाम 11वां अज़ीमुल शान इजलास आम जंग बदर व इस्लाम माशरा बतारीख 16 मार्च बरोज़ इतवार बामुकाम मस्जिद रहमानिया बाद नमाज तरावी मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी मैदान खिताबत के अजीम शाह सवार शोला बयां मुकर्रर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज़ लहजी कासमी साहब उस्ताद हदीस इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद से तशरीफ ला रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमाकर इस्तेफादा करें। ज़ेरे सरपरस्ती हज़रत मौलाना कबीरुद्दीन साहब इमाम व खतीब मस्जिद रहमानिया, ज़ेरे सदारत फ़ख्र निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लायक खान साहब नायब अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा निज़ामाबाद, ज़ेरे निगरानी मुफ्ती इब्राहिम साहब सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद, मुकामी आलिम दीन मुफ्ती इमरान साहब इमाम व खतीब मस्जिद गनी पिरकिट, मेहमान खुसूसी मैदान खिताबत के अजीम शाह सवार शोला बयां मुकर्रर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज़ लहजी कासमी साहब उस्ताद हदीस इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद से तशरीफ ला रहे हैं। क़िरात हाफिज़ मिसबा साहब नायब मोतमद जमीयतुल उलमा आरमूर, नाते शरीफ हाफिज़ इदरीस साहब इमाम व खतीब पिपरी, निज़ामत हाफिज़ फारूक साहब नायब मोतमद जमीयतुल उलमा आरमूर, अलदियान हाफिज़ शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा व अराकीन आरमूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमिया मुसलमानान आरमूर पिरकिट व मामड़पल्ली को इत्तला दी जाती है कि जमीयतुल उलमा आरमूर के ज़ेर एहतमाम 11वां अज़ीमुश्शान इजलास आम जंग बदर व इस्लाही माशरा 16 मार्च बरोज़ इतवार बमकाम मस्जिद रहमानिया बाद नमाज तरावी मुनाकिद होने जा रहा है। इस जलसे की सदारत हाफिज़ मोहम्मद लायक खान साहब नायब अमीर मिल्लत इस्लामिया निज़ामाबाद करेंगे, जिसमें मेहमान खुसूसी मैदान खिताबत के अजीम शहसवार हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज़ लहजी साहब कासमी उस्ताद इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमाम अहबाब से ज़्यादा गुजारिश की जाती है कि इस जलसे में शिरकत फरमा कर सवाब इदारे हासिल करें। जया जया है गीत को आंध्रा म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बनाने पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया एतराज़। कानून साज कौंसिल में एमएलसी के कविता ने कहा कि जया है तेलंगाना गीत को आंध्रा म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बनाना किसी को भी समझ में न आने का मामला होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर की कमी है क्या, इसलिए आंध्रा वालों के साथ बनाने पर मीडिया से एमएलसी के कविता ने एतराज़ किया। वो तेलंगाना तहरीक के दौरान कई हज़ार अफराद की शुराकतदारी को यकीनी बनाया था, लेकिन उस वक्त तेलंगाना तल्ली को गेजेट नहीं था। लेकिन आज जियो न होने की वजह से तेलंगाना तल्ली को
काम करने पर अफसोस जताया। इन्होंने कहा कि बदकम्मा बोनम हो तो एक खुसूसी मुकाम हासिल होता है, किसी भी तरह की खुसूसियत के बगैर मेजॉरिटी अवाम कबूल नहीं कर रही है। इन्होंने मजीद कहा कि हमारा तेलंगाना कई करोड़ जवाहरात का सितार होने के ताल्लुक से जेल के दीवार पर तहरीर करने वाले अजीम शायर आज़ादी पसंद दशरथी की 7 साला तकारीब को हुकूमत की जानिब से इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। సంస్కృతి చరిత్ర సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా కలుపుకొని ఒక విజన్తో ముందుకు పోతా ఉన్నామని చెప్పారు అధ్యక్ష. అవి చెప్తూ ఒక మాట ఏమంటారంటే అధ్యక్ష, మనం జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జనకేతనం అనేది అధికారిక గానంగా స్వీకరించామని చెప్పారు. సంతోషం అధ్యక్ష, తెలంగాణ కవి రాసినటువంటి పాట స్వీకరించడం అందరికీ సంతోషం. కానీ దానికి ఒక ఆంధ్ర ఆయన మరి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏందన్నది ఎవరికి కూడా అర్థం కానటువంటి విషయం అధ్యక్ష. తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క అస్తిత్వం కోసమే పోరాటం జరిగింది. దానికి మరి మన దగ్గర మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లే లేనట్టుగా ఒక కీరవాణి గారిని తీసుకొచ్చి దానికి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అన్నది చాలా సోషల్ మీడియాలో మాధ్యమాల్లో అంతటా కూడా అభ్యంతరం వ్యక్తమవుతున్నటువంటి విషయం అధ్యక్ష. అట్లానే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ అధికార స్వీకరణ రాష్ట్ర విశిష్ట గుర్తింపును సమ్మిళిత స్ఫూర్తిని మరింత పటిష్టపరుస్తుందని చెప్పినారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇక్కడ ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, తెలంగాణ తల్లి ఉద్యమ సందర్భంలో వేలాదిగా పెట్టుకున్నాం అధ్యక్ష. అందులో తమ్మర్ పాల్గొన్నారు, కోదండరాం సార్ పాల్గొన్నారు, జూపల్లి కృష్ణారావు గారు పాల్గొన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మంది పెద్దలు కూడా ఉద్యమంలో సమ్మిళితమై, సీతక్క గారు కూడా ఆనాడు నిరాహార దీక్ష చేసారు. ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు. తెలంగాణ తల్లికి దండ అయినటువంటి వ్యక్తి తెలంగాణలో లేరు అధ్యక్ష. साबिका सीएम केसीआर को अफराद खानदान से जान का खतरा होने की वजह से ही वो पुलिस बंदोबस्त के दरमियान रहते हुए अपने फैमिली से दूर रहने का सीएम रेवंत रेड्डी ने सख्त लहजे में किया तबसरा। गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर करते हुए करारदाद पर मशावरत करने के मौके पर आज सीएम रेवंत रेड्डी ने असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि गवर्नर की तकरीर गांधी भवन में एक कारकुन की तरह है। कुछ अफराद ने अपने लाइल्मी को जाहिर किया है। इन्होंने कहा कि अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए हर एक अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को इसकी मात के सम्राट से फैज़याब करने के ताल्लुक से गवर्नर ने अपने खुतबे में वजाहत किया। साबिका हुकूमत खातून गवर्नर को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। 2022 बजट इजलास के मौके पर गवर्नर की तकरीर के बगैर ही इजलास जारी रखने के बारे में याद दहानी की। 99% నేను సామాన్యుల నుంచి మీకు తెలుసు, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరు వచ్చినా కలుస్తాం. నేను గుమ్మడి నర్సయ్య గారిది నాకు సాయంత్రం, అంటే ఆ రోజు ఎంబడే నాకు తెలియలేదు, సాయంత్రం చూస్తే ఆ వీడియో చూసి నా ఇంటికి చాలా దూరంలో రోడ్కి ఇటు సైడ్ కాదు, ఇంటి దగ్గర కూడా కాదు, వారు పాపం దూరంగా నించున్నారు. ఒక పిల్లోడు ఎవడో వీడియో తీస్తున్నాడు. ఆ వీడియో తీసి ఏదో పోస్ట్ చేసినట్టు వాళ్ళు మా ఇంటి దగ్గర కూడా రాలేదు. ఇమ్మీడియట్గా అదే రోజు సాయంత్రం నేను గుమ్మడి నర్సయ్య గారికి నా పేషెంట్ నుంచి ఫోన్ చేయించిన. నెక్స్ట్ డే పొద్దున రాండి ముఖ్యమంత్రి గారు కలుస్తారని వారు మాట్లాడి, నేను ఆల్రెడీ ఖమ్మం వచ్చేసిన, మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నేను వచ్చి కలుస్తా అన్నాడు. వారు చాలా ఏళ్ళు ప్రజాప్రతినిధిగా పనిచేసిండ్రు. हल्दी किसानों को कम से कम 15,000 रुपये मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने का BRS MLC के कविता ने हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में आज BRS MLC प्ले कार्ड के साथ एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया। BRS MLC के कविता ने कहा कि कई दिनों से हल्दी किसान कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वो हल्दी किसानों को कम से कम मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने के उमूर पर मरकज या रियासती हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह का फैसला नहीं लेने की वजह से तेलंगाना में वाक़ई हल्दी किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बालकोंडा हल्के में 51,000 किसानों को कर्ज माफ़ किए जाने के मुंजमिला सिर्फ 20,000 किसानों को कर्ज माफ़ किया है। तेलंगाना असेंबली में साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना असेंबली में हुक्मरान कांग्रेस व अपोजिशन BRS अरकान के दरमियान गर्मा गर्म बहस व मुबाहिसा जारी है। गवर्नर की जानिब से की गई तकरीर पर इजहार तशक्कुर करते हुए करारदाद से मुतालिक मशावरत करने के लिए हिस्सा लिया। BRS P राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक रियासत में कहीं पर भी मुकम्मल तौर पर कर्ज माफ नहीं करने का इजहार किया। इस पर डिप्यूटी CM भट्टी विक्रमार्का ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर कर्ज माफ किया गया है और इससे मुताल्लिका हिसाब किताब जारी करने का इजहार किया। इस मौके पर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि इनके अपने हल्के में कुल 51,000 किसानों को कर्ज माफ करना था, लेकिन इसमें सिर्फ 20,000 किसानों को ही कर्ज माफ किया है और बाकी 31,000 अफराद को कर्ज माफ न होने का इजहार किया। సీఎం గారు లేచి మరి ఎందుకు మరి తను క్రెడిట్ కొట్టాలనుకుంటున్నాడా సార్? ఇప్పుడు అంటే అట్లా సార్, సార్ అది వదిలేయండి సార్, ఇక వాళ్ళిద్దరి మధ్య పంచాయతీ నాకెందుకు సార్, కానీ అది వదిలేయండి సార్. ఇక సార్ ఇప్పుడు వారు రుణమాఫీ మీద మా బాల్కొండ నియోజకవర్గం విషయం చెప్పారు సార్. రుణమాఫీలో బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో
51,000 మంది రైతులు ఉంటే ఇప్పటికైంది సార్ 20,000 మందికి అయింది సార్. ఇంకా 31,000 మందికి కావాలి సార్. వాళ్ళని చెక్ చేసుకోమనండి సార్. మళ్ళీ రిప్లైలో చెప్పానండి సార్. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। साबिक़ सीएम केसीआर को अरकान खानदान से जान का खतरा है, इसीलिए वो पुलिस बंदोबस्त के दरमियान रहते हुए अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं। गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर करते हुए करारदाद पर मशावरत करने के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने सख्त लहजे में किया तबसरा। बालकुंडा हल्के में 51,000 किसानों को कर्ज माफ किए जाने के मुंजा मिला, सिर्फ 20,000 किसानों का कर्ज माफ किया गया है। तेलंगाना असम्बली में साबिक़ा वजीर बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। हल्दी किसानों को सहारा दे, कम से कम 15,000 रुपये मुनासिब कीमत फराहम करे। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में प्ले कार्ड के साथ एमएलसी के कविता ने किया एहतजाज। बरोज़ इतवार जमीयतुल उलमा आरमूर पिरकिट की जानिब से अजीमुल शान जलसा-ए-आम जंग बदर व इस्लाम आशरा का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। मजलिस निज़ामाबाद की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, अमन की फिजा की बरकरारी, ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तबादले ख्याल। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।